Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. Hope you're all doing well and doing great. Today we are back with another video and we're going to talk about the structure of an eye. And before going to talk anything else, let's jump into the video. We are going to start from the outer portion of an eye, and firstly we are going to discuss about the receptor organs. Receptor organs are basically the sense organs which are going to detect the stimulus. There are many receptors organ in your body, for example, eye, nose, ear, tongue. They're the different receptor organs. But we are going to study about the one receptor organ, one sense organ that is called as an eye. So first thing first, we are going to study about its position. So human eye are located in the small portion of the skull, and that small portion is called as the eye socket. आपकी आंख जहाँ locate करती है skull के अंदर, उस portion को बेटे हम कहते हैं eye socket या फिर orbit. After the eye socket, after the position, we are going to discuss about the outer portion of an eye, and that is the eyelid. We're not going to talk about the eyebrows and the other thing, but we're just basically generally talking about the major eye parts. So the outer part is called as the eyelid, and this eyelid helps to protect from the mechanical injury. Then the hair-like structure, which is named as lashes, are the eyelash, and that protect from the dust particles. Then the outer covering, before the eyeball starts, there is an outer transparent covering in which a liquid runs, and that portion or that layer is called as conjunctiva. Exactly, आपकी आंख की जो आई सॉकेट स्टार्ट होने से पहले आपकी आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड रन कर रहा होता है, जो जिसने आपकी आंख को कवर किया होता है, जिसकी आप जो आपकी आंख को एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजक्टाइवा. जैसे आपकी हार्ट को पेरिकार्डियम लेयर होती है जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, जैसे आपके लंग्स को प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है उस वो प्रोटेक्ट कर रही होती है. सो देयर आर द डिफरेंट लेयर्स दैट, जैसे आपके ब्रेन को cerebrospinal fluid जो है, that is the protecting your skull. सेम इज़ द केस विद योर आई. आपकी आंख के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, रन कर रहा होता है, और जो आपकी आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंजक्टाइवा. अब हम आंख की जो मेजर लेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. और ये कंजक्टाइवा यूजुअली तब नज़र आता है जब ये ड्राई हो जाता है. तो ये यूजुअली आप कह सकते हैं कि जब बंदे की रूह निकल रही हो या जब बंदे की डेथ हो रही हो, तो तब उसकी आंखें जो हैं वो डेफिनेटली अगर वो खुली रह जाती हैं तो वो कंजक्टाइवा जो है वो ड्राई होकर श्रिंक हो जाता है. तो तब वो ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो नज़र आती है, क्योंकि आंखों की शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो देन यू गाइस कैन probably see that conjunctiva. Other than that, you cannot see easily the conjunctiva. Okay. Now let's discuss about the inner anatomy of an eye. Okay, eye जो है, और okay, before going to study about that, we just discussed that this whitish part is called as the sclera, and the non-whitish part is called as the cornea. Now this is, you can get at this point you can get it by watching this diagram or by looking at this diagram. The outer layer, मैंने कहा कि जो eyes की तीन layer basically divided हैं. Eyes is classified into three layer. One is called as the outer layer, one is called as the middle layer, and one is called as the inner layer. The outer layer consists of two things, and one is called as the non-whitish part and one is called as the whitish part. The whitish part is called as the sclera, and the non-whitish or the transparent part is called as cornea. Why it is transparent? The purpose of this is because the light needs to enter from this portion, so that's why it is the transparent. जो भी चीज़ transparent होती है, आप उससे light गुजारना चाहे तो वो easily गुजर जाएगी. तो इसलिए cornea जो है वो iris वगैरह से या फिर pupil वगैरह से पहले एक जो लेयर है आपकी आंख के ऊपर, आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द कार्निया. उसी की बैक साइड जो है, उसी लेयर की द बैक साइड इज द वाइटिश पार्ट, एंड दैट वाइटिश पार्ट इज कॉल्ड एज सेक्लेरा. अगर आप ये देखें तो ये जो वाइटिश पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेक्लेरा, और इस आयरस से पहले इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, एंड दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्निया. Okay, now comes to the second layer, and second layer is basically a muscular layer that is called as choroid. Choroid एक muscular layer है, and choroid जो है वो बिल्कुल black color की layer है. It is black in color basically. There is a reason behind it that white is black in color, but we're gonna study it later. But firstly, you need to understand that the choroid is a muscular layer through which muscles are attached. Choroid आगे आके, जैसे सेक्लेरा आगे आके कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती थी, सेम इज द केस विद द choroid. choroid आगे आके बेटे दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट वन थिंग इज कॉल्ड एज द आयरस एंड द अदर थिंग इज कॉल्ड एज द लेंस. ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर की ही आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. सो दैट्स वाई the choroid from the back side, this is called as the choroid. This is the muscular layers in which the muscles are present, which helps to
move the eye, which helps in the movement of the eye, whereas when it comes forward it just bend, and that bending converts them to the iris. अब iris is basically composed of two things. Iris is basically made up of muscles. One is called as the circular muscle and one is called as the radial muscle. जो rounded form में जो muscles होते हैं, that is called as the circular muscle, whereas the इस तरह लाइनों की फॉर्म में अगर जो muscles होंगे, that is called as the radial muscle. और ये सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल बेसिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, या फिर आप कह लें कि ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करते हैं. और प्यूपिल बेसिकली एक हॉलो ओपनिंग है. इट इज़ नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज़ द हॉलो ओपनिंग जहाँ से लाइट ने पास करना है. अब आप देखते हैं कि अगर इसकी मिसाल ऐसे नहीं कि जैसे अक्सर कोई बंदा आपकी आंखों में एकदम से करीब से लाइट जब जैसे ही मारता है तो आपकी प्यूपिल साइज़ बिल्कुल स्मॉल हो जाता है. उसकी रीज़न ये है कि आपकी आंखें बहुत डेलिकेट हैं, आपकी आंख के अंदर जो लेंस है वो बहुत डेलिकेट है. तो अगर उसकी आंख में बहुत ज़्यादा आप लाइट को फ्लश करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में आपकी नज़र के ऊपर कोई असर पड़ सकता है, आपकी नज़र जा सकती है, आपकी नज़र ख़राब हो सकती है, आपको ग्लासेस लग सकती हैं. तो ये कुदरती निज़ाम है कि जैसे ही आपकी आंख के अंदर या से गाड़ी की लाइट अगर फ्लैश करती है आपकी आंख के अंदर तो ये प्यूपल साइज़ स्मॉल हो जाता है. और अगर लाइट जो है वो थोड़े फासले से आपके पास होती है, मतलब उसमें काफ़ी फासला है, तो ये पीपल साइज़ जो है वो enlarge हो जाता है, बड़ा हो जाता है. So this is how the pupil size is getting smaller and larger because of the contraction and relaxation of iris muscles. One is called as the circular muscle and the other one is called as the radial muscle. Okay, so we were about talking about the second layer of an eye, which is the choroid, and which is from the back side it is black in color, and in front it is basically divided into the iris and the ligaments, which is called as the ciliary body and the suspensory ligaments. If we're going to talk about the ciliary muscles or the suspensory ligaments, basically the choroid is the middle layer and it contains some blood vessels, and it is also the black in color or the dark in color. And I just told you that there is a reason behind it, that why it is black in color. I will tell you later why it is black in color. I was talking about the iris is a muscular ring like layer in which circular and the radial muscles are in this iris. The circular or the radial muscles are present, which helps to uh, control the which helps to control the position or which helps to control the size of the pupil. And pupil is basically the hollow opening. अब आप यहाँ से देखें बेटे, यहाँ हमने कहा कि जो आउटर पार्ट है दैट इज द सेक्लेरा, और ये जैसे ही फ्रंट पे आता है ट्रांसपेरेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्निया. कोराइड जो है वो आउटर जो है वो इनर जो सेकंड मिडल लेयर है दैट इज द डार्क इन कलर और द ब्लैक इन कलर, और जैसे ही वो फ्रंट पे आएगा तो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू द आइरिस एज वेल एज इट कन्वर्ट्स इनटू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स. और सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर द लिगामेंट्स व्हिच होल्ड द लेंस एंड इट इज़ अटैच टू द सिलरी मसल्स. ये सिलरी मसल्स के साथ अटैच हैं और सिलरी मसल्स ने सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच होकर बेसिकली लेंस को होल्ड किया हुआ है. And the lens in your eye is basically the convex lens. There is a reason behind it, and the reason is the convex lens is the purpose of the convex lens is to converge the light to a single point. Convex lens आप इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी लाइट इससे पास होगी वो एक पॉइंट पे मीट करेगी. So that's why in the eye there is a convex lens. और मैंने आपसे बात की थी कि आइरस के अंदर सर्कुलर और रेडियल मसल हैं, तो जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो रेडियल मसल कंट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं. जबकि लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो रेडियल मसल रिलैक्स करेंगे और सर्कुलर मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे. तो डेफिनेटली जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो पीपल का साइज़ छोटा होता है, और पीपल का साइज़ छोटा होगा तो वो कब होगा, जब रेडियल मसल रिलैक्स करेंगे. आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर रिलैक्स, एक का याद रखें दूसरे का टोटली ऑपोजिट है. तो रेडियल मसल जो है वो बेसिकली रिलैक्स करेंगे जब पीपल साइज स्मॉल होगा, और सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे. और जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम होगी तो प्यूपल साइज एनलार्ज होगा, तब रेडियल मसल रिलैक्सेशन करने की बजाय या रिलैक्स करने की बजाय कंट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे. होपफुली दिस इज़ क्लियर नाउ. दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कोराइड के बाद लेंस की बात कर रहे थे हम लोग. तो लेंस में बेसिकली हमने कहा कि कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो तरह के लेंसेज होते हैं, वन इज कॉल्ड एज कन्वेक्स एंड वन इज कॉल्ड एज द कनकेव. सो कन्वेक्स लेंस इज यूज टू कन्वर्ट द लाइट इनटू अ सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई इन द आई देयर इज द कन्वेक्स लेंस.
और इससे पहले हमने यहाँ पर बात कर रहे थे कि कॉर्निया से बिल्कुल आगे एक एम्प्टी स्पेस होती है, एक लिक्विड रन कर रहा होता है, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज, दैट इज अ वाटरी फ्लूइड एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्वस ह्यूमर। ये आपकी आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और आपकी आंख को शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये लिक्विड इसलिए रन करता है, सेकेंडली इस लिक्विड रन करने का ये भी मेजर पर्पज होता है कि आपकी आंख में जो भी गंदगी वगैरह, जो भी डस्ट वगैरह, जैसे कोई पार्टिकल, तो जैसे ही कोई छोटा पार्टिकल आपकी आंख के अंदर चला जाता है तो आप फ़ौरन से अपनी आईलिड को क्लोज करके उसको मलना शुरू कर देते हैं, आप उसको ऐसे रब करना शुरू कर देते हैं। तो उस, और अगर कोई बड़ा पार्टिकल चला जाता है तो आपकी आंख से ऐसे वाटरी फ्लूइड सा भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, टीयर ग्लैंड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो टीयर ग्लैंड्स आर बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज द टीयर ग्लैंड्स हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो किसी ना किसी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। Then we are going to talk about the ciliary muscles. Ciliary muscles में क्या है कि लेंस बेसिकली अटैच्ड हैं ciliary muscles, लेकिन लेंस डायरेक्टली ciliary muscle के के साथ अटैच नहीं है, वो अटैच है विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ताकि आपको दूर की चीज़ें या नज़दीक की चीज़ें ईजिली नज़र आ सकें। और इसके बाद लास्ट लेयर आ जाती है या इनर लेयर आ जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रेटिना। रेटिना के ऊपर बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द कोन सेल एंड वन इज कॉल्ड एज द रॉड सेल। जब जैसे ही लाइट कन्वर्ज होती है और एक सिंगल पॉइंट पे फॉल करती है, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज द रेटिना। अगर लाइट जो है वो आपको इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, तो आपको कोई भी ब्लरी इमेज नज़र नहीं आती, आपको बिल्कुल क्लियर इमेज नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे आप इजीली ले सकते हैं कि जो लोग ग्लासेस का यूज़ करते हैं या आई साइट जिनको लगी हुई है, जिनकी आई साइट वीक है और जो ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो है वो बेसिकली अगर ग्लासेस उतारें तो उनको चीज़ें ब्लरी नज़र आएंगी। तो अगर उनको ग्लासेस उतारने के बाद भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, तो दैट मीन द इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोविया। फोविया इज दैट पॉइंट जहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। ठीक है। फोटो रिसेप्टर रेटिना इज बेसिकली फुली कंपोज्ड ऑफ आर फुली मेडअप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं। अब रॉड और कोन सेल्स की एक सिमेट्री है बेटे कि रॉड सेल्स बेसिकली रात के वक्त, आर पर रॉड और आर पर रात, डिम लाइट बेसिकली वी यूज फॉर द साइंटिफिक टर्म कि रॉड सेल्स डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, जबकि जो कोन सेल्स हैं वो ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं। यही वजह है कि जब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में एकदम से जाते हैं तो तब कोन सेल्स एक्टिव होते हैं और वो कोन सेल्स फिर अपने आप को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं और जो रॉड सेल्स हैं वो एक्टिवेट होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए आप जब रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू होती हैं। अब इमेज बन नज़र तो इमेज फॉल तो रेटिना के ऊपर होती है, लेकिन ये इमेज दिखाई कैसे देती है? इसके लिए आपकी जो आइज़ हैं उसके साथ एक सेंसरी नर्व अटैच है। डेफिनेटली नर्व्स आपकी ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो जैसे ही इमेज बनती है आपकी आंख की रेटिना के ऊपर, तो दैट इमेज इज़ जस्ट गॉन टूवर्ड्स द ऑप्टिक नर्व। जो है वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उस इमेज को बिल्कुल स्टिमुलेट करती है या उस इमेज को ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन एनालाइज करता है और एनालिसिस के बाद रिस्पॉन्स बैक करता है और आपको इमेज वो है बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी वो इमेज नज़र कैसे आएगी, क्योंकि दैट इमेज इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व अटैच टू द रेटिना। और अगर अब रेटिना के पास भी एक पॉइंट है, अगर ऑप्टिक नर्व इज दैट पॉइंट जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं है। अगर इमेज रेटिना के ऊपर बनने की बजाय इस ऑप्टिक नर्व के ऊपर बन गई, तो दैट मीन्स दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट सी एन इमेज, जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी कि अगर आपको सामने को बंदा इमेज दिखा भी रहा है, अच्छा वो बंदा खड़ा है कि तुम्हें नजर आ रहा है, यू से दैट यार मुझे नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज बेसिकली द ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर आपको अगली कोई चीज़ दूर से दिखाई नहीं देती है। और ऑप्टिक नर्व हो गया, फोबिया हो गया। ओके, आईज के अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद है, बट दिस इज नॉट द वाटरी फ्लूइड। द इनर साइड ऑफ द आई कंटेन्स द जेली लाइक फ्लूइड, जो कि प्रोटेक्शन और शेप और आई की पोजीशन को फॉर्म रख रही है और ब्लड वेसल्स वगैरह को भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द विर्चुअस ह्यूमर। So let me revise all of the things. We have studied that eye is basically, there is the three more eye position. Firstly, we have discussed about the position of the eye, that it is located under the skull and that portion is called as the eye socket or the orbit. Then we have discussed about that the outer part, before going to study about the layers of the eye, we just have discussed that the outer portion is called as the eyelid, and the eyelid protect from the mechanical injury. Then we talk about the eyelashes, and eyelashes is basically protect from the dust particle. And then we just said that before the eyes layer starts,
there's a transparent covering that protect your eye, and that transparent covering is called as conjunctiva. And we have also discussed that under the eyelid, the some muscles are present which helps in the movement of the eye, which helps in the blinking of, and that muscle is named as the rectus muscle. And then we also have discussed about the layer of the eye. There are the three major layer of the eye. One is called as the outer layer, the other one is called as the middle layer, and the last one is called as the inner layer. In the outer layer, this consists of two things. One is called as the sclera, and sclera is the white in color. It's consist of the, it is made up of the connective tissues, and it maintains the shape of the eye, whereas the cornea is in the front of the sclera, that is called as the cornea, and it is transparent, it is not white in color because the light rays are entering from this layer. So light rays are entering from this side, so that's why it is transparent. And then we talk about the second layer, and the second layer is the muscular layer, which is called as the choroid, and the choroid contain the blood vessels, and it is dark in color from the back side, and it is from the front side, it is bent with the iris, that behind the cornea you may say that the choroid bends to form a muscular ring, that is called as choroid bends to form a muscular ring, that is called as the iris, and it is also bent to form the suspensory ligaments. Suspensory ligaments are the ligaments through which the ciliary muscles are attached, or the ciliary muscles are attached to the suspensory ligaments which hold the lens. And lens is the very delicate portion. In your eye, the convex lens is attached, and that convex lens is used because it converts the light to a single point, and that point is called as retina, because the retina is the innermost layer of the eye where the image is formed, and it consists of, it is a consists of photoreceptor cells. There are the two type of cell, one is called as the rod cell and the other one is called as the cone cells. The rod cells are active in the dim light, whereas the cone cells are active at the in the bright light. And the purpose of when you go from the bright light to the dim light, the cone cells just suppress themselves, and rod cells, the other function of the rod cell are they used to see the objects, whereas the cone cells are used to see the colors. If a person cannot differentiate between a red and green color, that means the cone cells are not working, and that is called as a color blindness as well. We can call that person the color blindness, and it can be overcome by the it can be overcome if you use more amount of vitamin A, and vitamin A is present in the carrot, and you can use supplements as well. So if you eat carrot, because the carrot contain the carotene, beta carotene pigment, and in the beta carotene pigment uh, there is a pigment that is called as the rhodopsin pigment, and that rhodopsin pigment basically increase your eye vision. And if there is a deficiency of that pigment, then that means there is a problem, and that problem is called as a poor night vision. That person cannot see at the night time. Most of the time those people cannot see at the night time. So there is one more thing that we need to discuss about. There was the aqueous humor and the vitreous humor, and both of this humor have to maintain and shape of the eye, and as well as this for the lens as well. There is one more thing that we need to study, and that is basically the long sightedness and the short sightedness. The word long sightedness means that you cannot see the objects that are near. Like you can see the objects from the distance object, जो दूर पड़ी हुई चीज़ें हैं वो आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन जो नज़दीक पड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी. हालांकि ये वर्ड लॉन्ग साइटेडनेस है, बट इसका ऑपोजिट है. द लॉन्ग साइटेडनेस बेसिकली कि जिसमें आपको अब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि इमेज जो है वो बेसिकली रेटिना के ऊपर बनने की बजाय रेटिना के बिहाइंड बन जाती है. दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग साइटेडनेस और द फार साइटेडनेस. इस कंडीशन को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं. और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इमेज अगर रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना के पीछे बन जाए, बिहाइंड द रेटिना बन जाए, तो फिर आपको इमेज दिखाई नहीं देती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. और उसके लिए फिर आप लेंस जो है वो बेसिकली आपका लेंस की पोजीशन को हम चेंज करते हैं. हम वो लेंस जो है वो बेसिकली उसका ट्रीटमेंट ये है कि आप उसके लिए जो लेंस यूज़ करते हैं दैट यू आर गोइंग टू यूज़ द कन्वेक्स लेंस. और जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसमें आप नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें आपको ईजिली दिखाई नहीं देती हैं. और दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द मायोपिया एज वेल, और द शॉर्ट साइटेडनेस. शॉर्ट साइटेडनेस से मुराद है कि आपको नज़दीक की चीज़ें जो है वो सही दिखाई देगी, लेकिन आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी. और इसके लिए आप जो है वो कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे आपके जो ग्लासेस का लेंस होगा दैट मस्ट बी द कनकेव लेंस, सो यू कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल. और इस कंडीशन में
दिस वाज ऑल अबाउट इट आई गेस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज क्लियर। बेसिकली लेंस की शेप चेंज हो जाती है। अब जो नियर विजन के लिए जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, और जो दूर की चीज़ों के लिए देखने के लिए लेंस जो है वो बेसिकली थिन हो जाता है। लेंस गेट थिकर एंड थिकर, सो दैट्स व्हाई। और एक और चीज़, मायोपिया में इमेज जो है वो रेटिना के बिल्कुल सामने बन जाती है। यहाँ पर रेटिना की बिहाइंड बन जाती थी और यहाँ पर इमेज जो है वो रेटिना के सामने बन जाती है। दिस वाज ऑल